اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ آج میں لوشوبر چارٹ کے بارے میں مزید آپ کو سکھاؤں گا کہ لوشوبر چارٹ جو ہوتا ہے وہ چارٹ کے بارے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کل بھی میں نے اس کا پارٹ 1 اپلوڈ کیا تھا، تھوڑا سا آپ کو اس کی ہسٹری بتائی تھی اور تھوڑا سا تعارف کروایا تھا۔ آج ہم مزید لوشوبر چارٹ کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو چارٹ ہوتا ہے نا 1 سے لے کے 9 تک جو ڈیجٹ ہوتے ہیں، یہ کسی نہ کسی ان ڈیجٹ کو پلانٹ کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو ہم ایک ڈیجٹ کو ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو 1 سے لے کے 9 تک یہ جو آپ کے سامنے یہ جو لوشوبر چارٹ بنا ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو کاپی پہ بنا لیں۔ اس کے بنانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 5 اس کے سینٹر میں ہوتا ہے، 2 4 6 8 یا کونوں پہ لکھ لیں، 7 3 9 1 یہاں پہ آ جائیں گے۔ اب اس کو آپ جدھر سے بھی جمع کریں گے آنسر 15 آئے گا۔ 4 3 7 اور 8 15، 9 5 14 اور 1 15، 7 2 9 اور 6 15، 8 1 9 اور 6 15، 5 3 8 اور 7 15، 9 4 13 اور 2 15۔ تو اصل میں جس انسان کے یہ زیادہ سے زیادہ جن کی یہ رو مکمل ہو رہی ہوں گی، یہ گولڈن رو ہوتی ہے 4 5 6 والی، اگر یہ 4 5 6 آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں یہ 4 5 6 کے ڈیجٹ آتے ہیں تو آپ انتہائی خوش قسمت انسان ہیں، کیونکہ آپ کی گولڈن رو مکمل ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس 2 5 اور 8 بھی آپ کا مکمل ہو رہا ہے تو آپ کی سلور رو مکمل ہو رہی ہے۔ تو یہ ان کے انسان کس قدر کامیابیاں حاصل کرے گا، اس کی میرج لائف کیسی رہے گی، اس کو جاب کب ملے گی، تو یہ انسان کی پوری لائف کے بارے میں یہ چارٹ بتا دیتے ہیں۔ تو یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، لیکن آج جو ہے وہ میں اس میں جو 1 نمبر ہے آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں 1 نمبر جو ہے اس کو سن کے ساتھ جوڑا گیا، سورج کے ساتھ۔ جس انسان کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 نمبر جو ہے وہ جو لوگ 1900 میں پیدا ہوئے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو اگر تو انہیں صرف 1900 والا 1 ملا ہے، ان کے 1980 کو کوئی پیدا ہوئے تو اس کو بس وہ 19 والا 1 ملا ہے تو وہ کوئی اس کو اتنا زیادہ بینیفٹ نہیں دے گا، کیونکہ وہ سینچری کا نمبر ہے۔ 1900 میں اب جو بھی پیدا ہوگا اس کو 1 کی جو انرجی ہوگی وہ تو اس لحاظ سے نہیں ملے گی۔ تو اس لحاظ سے 1 نمبر اگر آپ کے لوشوں میں اس کے علاوہ آتا ہے، 1900 کے علاوہ اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 اگر ایک دفعہ آتا ہے یا 2 دفعہ آتا ہے تو اس کے پھر آپ کو 1 کی بڑی زبردست طریقے سے انرجی ملتی ہے۔ اب سورج کو پہلے آپ سمجھ لیں، 1 نمبر کو سن کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سورج جو ہے وہ اس کائنات کی روح ہے۔ جیسے انسان کے اندر بھی روح رکھی گئی ہے، اگر روح انسان کے جسم سے نکل جائے تو انسان کی باڈی کو مردہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر اس کائنات میں سے اگر سورج نہ ہو، یعنی کہ وہ دوبارہ طلوع نہ ہو، اس کی روشنی ہمیں نہ ملے تو زندگی ناپید ہو جائے گی، زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دنیا میں آپ کو جتنی بھی رعنائیاں زندگی کا وجود نظر آتا ہے وہ سورج کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ تو سورج کے اندر ہیٹ پائی جاتی ہے، سورج کے اندر ایک انرجی پائی جاتی ہے۔ سورج اس کائنات کا راجا ہے، کنگ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 نمبر ایک دفعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ آتا ہے تو ان کے اندر وہ سورج والی کوالٹیز آتی ہیں۔ راجا کے اندر کیا کوالٹیز آتی ہیں؟ راجا کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ راجا دوسروں پر رول کرنا چاہتا ہے تو یہ 1 نمبر والے دوسروں پر رول کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اندر لوگوں پر کمانڈ کرنے کی صلاحیت، ان کے لیڈر ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایگو بڑی پائی جاتی ہے، کیونکہ سورج ایک گرم پلینٹ ہے تو ایک گرمی، ایک غصہ، اپنی بات منوانے کی ضد، یہ چیزیں ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ بڑا دلیر بھی ہوتا ہے، اس کے اندر انرجی پائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ میں دنیا میں کوئی بڑا مرتبہ مقام حاصل کروں، میں کوئی بڑے عہدے پہ مجھے ملے، اور اس کے لیے وہ بڑی زندگی میں سخت محنت کرتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ جو 1 نمبر والے ہوتے ہیں یہ زندگی میں بڑے بڑے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے یہ سربراہ بھی بنتے ہیں۔ یہ بندہ سیاست میں ہوگا تو یہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر پاکستان تک بنے گا۔
अगर आप उसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 अच्छा मौजूद है, इनके 1 दफ़ा 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आ रहा है, कम से कम आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1-2 दफ़ा आए तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। इसके अलावा ये क्या करेगा, ये आपके अंदर एनर्जी, ईगो पैदा करेगा। आपकी गवर्नमेंट जॉब भी आपकी तब भी होगी अगर आपके पास 1 नंबर 2 दफ़ा आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब मिलने के आपको ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सूरज से हम गवर्नमेंट को भी देखते हैं। गवर्नमेंट, इसके अलावा गवर्नमेंट से मिलने वाला फ़ायदा, वो भी अगर आपकी कुंडली में सूरज अगर अच्छा बैठा होगा तो आपकी जॉब अच्छी हो जाएगी। आपके लोशोबर चार्ट में 1 नंबर 2 दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है, तो आपको सन की एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मिलेगी। अब देखिए, लोशोबर चार्ट में ये जो 1 से लेके 9 तक डिजिट हैं, ये चाइनीज़ इसको अपनी जन्म कुंडली के तौर पर यूज़ करते हैं, और जो वैदिक कुंडली है जिनको हिंदुस्तान में एज ए जन्म कुंडली के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है इनमें, ठीक है। यानी कि 1 को लोशो में इसका जो एलिमेंट है इसको वाटर मिला है, पानी, जबकि वैदिक कुंडली में 1 नंबर इनके सूरज को जो एलिमेंट उसको मिला है वो फायर मिला है, आग मिली है। तो इनके आग और पानी बिल्कुल एक दूसरे के उल्ट, तो इसलिए इसको बिल्कुल अगर आप वैदिक के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको इतना अच्छा रिजल्ट ना मिले, तो इसको थोड़ा सा आपने डिफरेंट तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करनी है। तो इसका जो एलिमेंट है वो वाटर है लोशोबर चार्ट में, और इस चार्ट की अगर आप ये समझ लें कि ये आपके पूरे घर का भी बताता है। देखिए, अगर आपका कोई नंबर मिस है, आपने कोई रेमेडी करनी है, तो लोशो का ये जो साइड है ये मशरक की सिमत है, ईस्ट, बिल्कुल इनके यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3, 4 और 8 ये मशरक सिमत पे आ रहे हैं, ईस्ट साइड ईस्ट सिमत पे, और ये वेस्ट है, 2, 7 और 6 ये वेस्ट साइड है, और इससे नीचे जो ये वाला 8, 1, 6 ये नॉर्थ साइड है, और ये 4, 9, 2 ये साउथ साइड है। तो इस लिहाज से 4 नंबर जो है ये कोने में बनता है, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन बनती है। नंबर 2 जो होता है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन बनता है, 7 वेस्ट डायरेक्शन पे है, 6 जो है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे है, और इसी तरह 8 नंबर जो है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे है। तो अब अगर आप ये नंबर, ये जो 1 से लेके 9 तक नंबर है, इनको किसी ना किसी एलिमेंट के साथ भी जोड़ा गया है। इनकी ये जितनी भी कायनात है ये 4 अनासर से मिलकर बनी है, आग, मिट्टी, हवा और पानी, और इन नंबरों को 1 से लेके 9 तक इन्हीं एलिमेंट के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। तो अब हर इंसान की जिंदगी में किसी ना किसी एक एलिमेंट की कमी हो सकती है, किसी में वाटर की कमी हो सकती है, किसी की एयर की कमी हो सकती है, किसी की वुड की कमी हो सकती है। तो इसलिए हमने जो भी रेमेडी देनी होती है, आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, नफ्सियाती मसाइल चल रहे होते हैं, या आपकी जिंदगी बड़ी डिस्टर्ब होती है, तो वो हमने आपको एलिमेंट के लिहाज से और प्लेनेट के लिहाज से हमने आपको रेमेडी बतानी होती है। तो और उसके लिए फिर हमने, ये आप समझ लीजिए कि ये आपका घर है, ये आप खुद भी हैं और ये आपका घर भी है। ये आपकी घर की मशरक वाली सिमत है, ये मगरब वाली सिमत है, ये जुनूब वाली सिमत है, और ये नॉर्थ शमाल वाली सिमत है। इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूं कि अगर 3 और 4 ये इसके ये वुड एलिमेंट है, तो अब 3 और 4 वुड एलिमेंट अगर हैं और आपकी जिंदगी में इनके 3 और 4 नंबर नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम आपको कहते हैं कि आप अपने घर की मशरक वाली सिमत में आप कोई खूबसूरत से इनके फूलों वाले गमले लगा लें, जो सही पौधे होते हैं आप उनको लगाएं, और या किसी आप ऐसी की चेन का इस्तेमाल करें जिसमें वो वुड का कोई छल्ला वगैरह बना हो। इनकी जितना आप वुड अपने पास रखेंगे, लकड़ी अपने पास रखेंगे, किसी भी शेप में कोई खूबसूरत कोई भी डेकोरेशन पीस हो सकता है, तो उससे आपकी जिंदगी में आपको उसका फायदा मिलता है। ये इनके हम रेमेडी के तौर पे बताते हैं। तो इसलिए लोशोबर चार्ट में इन जो सिमतें होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इन डायरेक्शन का इस्तेमाल फिर जिस लिहाज से आपकी लाइफ में जिस एलिमेंट की कमी होती है उस लिहाज से आपको उस एलिमेंट की रेमेडी भी बताई जाती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं रेमेडीज पे भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आज हमने 1 नंबर को डिस्कस कर रहे हैं, तो 1 नंबर का जो एलिमेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि ये वाटर है,
और ये सूरज के साथ जोड़ा गया है। तो लीडरशिप क्वालिटीज, ईगो, अनाज, जिद, ये चीज़ें आपके अंदर पाई जा सकती हैं। इसके अलावा 1 नंबर को जो कलर मिला है लोशोबर चार्ट में, वो मिला है जनाब गहरा नीला और ब्लैक। और फैमिली में देखिए ये जो आपके रिश्ते हैं ना, उनको भी में आपने नंबरों के साथ जोड़ा गया। आप 1 नंबर को आपका जो फैमिली मेंबर कौन होगा, वो जो आपका सबसे बड़ा बेटा होगा, उसको हम इधर से, या फैमिली मेंबर के दरमियाना बेटा जो आपका होगा, उसको हम देखा जा सकता है इससे। और जो मौसम, अगर हम मौसम देखें तो इस जो सर्दियों का इब्तदाई मौसम होता है, इसको उसके साथ जोड़ा गया है। कोई भी आपने नया काम करने, तो अगर आपके पास 1 नंबर आपके पास है तो आप कोई भी काम बड़े अच्छे तरीके से शुरू कर सकेंगे। यानी कि किसी भी काम का आगाज जो है उसको भी हम 1 नंबर से देखते हैं। और आपका जो ज़िंदगी में आपको प्रमोशन मिलनी होती है, जो आपने ज़िंदगी में तरक्की करनी होती है, आपका बड़ा ज़बरदस्त कैरियर होता है, वो भी हम 1 नंबर से देखते हैं। और ज़िंदगी में आप किस कदर आगे बढ़ेंगे जिस्मानी अज़ा में। देखिए जो इंसानी पार्ट है ना, जो इंसान जितने भी अज़ा हैं सर से लेके पाँव तक, उनको भी नंबर्स के साथ जोड़ा गया है। तो अब अगर 1 नंबर किसी के पास मौजूद नहीं है, तो 1 नंबर को कौन से अज़ा में, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। किडनी, गुर्दे जो होते हैं, ईयर्स और ब्लैडर, इनको जो है वो जोड़ा गया है 1 नंबर के साथ। अब अगर आपके पास 1 नंबर की कमी है, तो उस लिहाज से देखिए सूरज जो होता है वो तो पूरी बॉडी को नुमाइंदगी करता है ना, इनकी आपकी हड्डियां, आपकी जिस्म की जो ग्रोथ है। अगर आपके पास 1 नंबर नहीं होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, आपके अंदर जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा नहीं होगा, आप बड़े कमजोर से लागर सुस्त से होंगे, जिंदगी में ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे अगर 1 नंबर नहीं होगा। तो ये मिसिंग नंबर भी मैं बड़ी डिटेल से डिस्कस करूंगा, अभी आपको थोड़ा थोड़ा तारफ करवा रहा हूं। तो अब ये है कि जब 1 नंबर आपके पास नहीं होगा तो आपकी किडनी में स्टोन हो सकता है, किडनी से रिलेटेड बीमारियां आपको हो सकती हैं, कानों से रिलेटेड बीमारियां आपको हो सकती हैं। इसके अलावा ब्लैडर से रिलेटेड आपको मसले हो सकते हैं, कानों की खराबी हो सकती है। इसके अलावा आंखों को भी हम 1 नंबर से देखते हैं, ये रोशनी जो होती है, बिनाई जो होती है, उसको भी हम देखते हैं। इसके अलावा जो हड्डियों की ग्रोथ होती है, जो कैल्शियम बनता है, वो धूप की रोशनी में विटामिन डी के साथ हमारी हड्डियों की ग्रोथ होती है, वो सूरज की रोशनी की वजह से ये सारा प्रोसेस होता है। हमारी हड्डियों को जो मजबूती मिलती है, हमारी हड्डियों की जो ग्रोथ होती है। तो सूरज की हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत है। अगर सूरज आपके पास बड़ा स्ट्रांग है, अल्लाह ताला ने आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर आपको 2 दफा या 3 दफा मिला हुआ है, कम से कम 2 दफा मिला हुआ है, तो उसको बहुत अच्छा माना गया है। तो आपके अंदर, आप जिंदगी में बेइंतहा तरक्की भी करेंगे, अल्लाह ताला आपको बेइंतहा कामयाबियां भी देगा। आपके अंदर ईगो और गुस्सा, ये चीजें थोड़ी सी नेगेटिविटी इंसान के अंदर पाई जाती है, लेकिन ये सूरज का एक खासा है, ये सूरज की एक शान है कि सूरज जो है वो राजा है, किंग है, और वही चीजें फिर इंसान के अंदर भी आती हैं। तो जितने भी आपको दुनिया में बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग फायज नजर आते हैं, जिनके अंडर हजारों लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो उनको रूल कौन कर रहा होता है? उनको सूरज रूल कर रहा होता है। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से 1 नंबर को समझ गए होंगे कि लोशोबर चार्ट में 1 नंबर की क्या अहमियत है। और डेट ऑफ बर्थ में अगर 1 नंबर आपका 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आता है, ये जो रिपीटेड नंबर हैं इनकी अलग से वीडियो बनेगी, और जो मिसिंग नंबर है उनकी अलग से वीडियो बनेगी। तो ये कंप्लीट कोर्स है जो मैं अपलोड करूंगा इंशाल्लाह ताला। तो मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि आपको बड़ी डिटेल के साथ एक एक डिजिट के बारे में मैं बताऊं। तो आज मैंने आपको 1 नंबर सन के बारे में बताया है, सूरज के बारे में, और बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में हम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, फिर 3 को डिस्कस करेंगे। तो 1 से लेकर 9 तक हम तमाम डिजिट को डिस्कस करेंगे जो कि लोशोबर चार्ट में यूज हुए हैं, और फिर इनको किन प्लेनेट के साथ जोड़ा गया है, इनके कौन से कलर होते हैं, और इनके एलिमेंट कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं बड़ी तफसील के साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको मज़ा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप अपना हाथ हीट करवाना चाहते हैं, अपना जायचा वगैरह बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। अगर आप
पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं तो आपने ये वाला नंबर, इसमें मैंने कंट्री कोड नहीं लगाया, ये जो लोग बैरून मुल्क रब्ता करेंगे ये पाकिस्तान का कोड है 992, ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो बैरून मुल्क वाले ये वाला नंबर यूज़ करेंगे, ये कोड लगा के ये बैरून मुल्क वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो लोग पाकिस्तान से रब्ता करेंगे वो ज़रा कंट्री कोड नहीं लगाएंगे, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आपका मैं लोशोबर चार्ट बनाऊंगा, उसकी आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद आपकी वैदिक कुंडली बनेगी। वैदिक कुंडली वो जो इंडियन बनाते हैं, जन्म कुंडली जो आपने फिल्मों में भी सुना होगा, वो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली इतना एक्यूरेट बताती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी नहीं होगी, शादी आपकी कब तक हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं उनकी सेटलमेंट, अपने सेटलमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कब तक मुमकिन है, और अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे आप सेटल होंगे या आपको वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो जिनकी जॉब नहीं हो रही उनकी जॉब कब लगेगी। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनका अच्छा टाइम कब आएगा, उनके पास दौलत कब आएगी, रुपया पैसा कब आएगा, उनको ज़िंदगी में खुशियाँ, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उनको कब मिलेंगी, ठीक है जी। इंसान ने शादी के बारे में ज़्यादा पूछना होता है। कुछ लोगों को शादी तो हो जाती है, औलाद नहीं होती, तो वो बेबी कब पैदा होगा, बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली से पता चल जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोशोबर चार्ट से भी आपको रीडिंग दूंगा, उधर से भी मैं आपको बता दूंगा इन सब बातों का। लोशोबर चार्ट भी काफ़ी हद तक बता देता है, लेकिन वैदिक कुंडली में हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट जो है ना वो लिखी होती है, अगर आपको वो चार्ट पढ़ना आता हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वैदिक कुंडली से भी मैं एक्यूरेट रीडिंग दूंगा और उसके अलावा आपके हाथ की लाइनों से भी आपको मुकम्मल रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हाथ की एक एक लाइन को मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसकी रीडिंग भी आपको मैं सेंड करूंगा। तो बाकी जो लोग अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उनके भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको वॉइस मैसेज में मैं ज़्यादातर रीडिंग भेज दूँगा। आपको वॉइस मैसेज में आपके व्हाट्सएप पे रीडिंग आपको मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो बनवाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी बनवाना पसंद करते, तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप फरमाइश करेंगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं तो वीडियो उन्हीं लोगों की बनेगी जो रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करते हैं, जो पे करते हैं। रीडिंग पेड है, ठीक है जी। वीडियो फ्री में नहीं बनती और रीडिंग भी फ्री में नहीं होती। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको अपने चार्जेस भी बता दूंगा, और अगर आपने वीडियो बनवानी होगी तो उसके भी चार्जेस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो वो कितनी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग फ़ीस है। पाकिस्तान की फ़ीस अलग है, इसलिए मैं फ़ीस को मेंशन नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत कमी बेशी भी मैं कर लूँगा। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में हुए तो इंशाल्लाह ताला फ़ीस में कमी बेशी भी हो जाएगी, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, और इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेट रीडिंग होगी। बाकी आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड कर दें। आप कितने बजे पैदा हुए हैं और आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए आपकी असल तारीख पैदाइश की ज़रूरत होती है। तो आपने अपना रियल डेट ऑफ बर्थ बतानी है, रियल टाइम ऑफ बर्थ बताना है, और आप किस शहर में पैदा हुए हैं ये आपने बताना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हुआ लेकिन आपके पास डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो फिर बहन भाइयों की तरतीब से भी मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो फिर आपने अपने बच्चों की तरतीब भी बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी ना बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ आपका निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आप रीडिंग के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दी है। बराए मेहरबानी अगर कमेंट सेक्शन में कोई आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो आपने बिल्कुल किसी और नंबर पे रब्ता नहीं करना। अगर आपने अपने हाथों की रीडिंग करवानी है तो आपने मेरे इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, ठीक है।
اور ریڈنگ میں اپنے پرسنل نمبر سے کرتا ہوں، وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو پھر میں آپ کو اپنا وہ نمبر بھی بتا دوں گا۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔